So today I am here to solve the doubts which were given by you people in the live class. So today we will justify you all by giving the solution of the doubts. Clear? Then after, I hope you all the people will go through the doubt which was given by you. Okay? So one by one let me discuss exercise wise. Okay? First of all, let me start from chapter number 2, exercise. In exercise 2.1, what was the doubt asked by the student? Write the degree of question was, write degree of, आपको इसमें डिग्री लिखना है. The question is 5x power 3 plus 4x square plus 7x. What is the highest power of the variable? हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका डिग्री. तो ये जो है यहाँ पर इसका डिग्री जो होगा वो होगा 3. Degree is coming 3 here. There everybody. So any expression will be given to you. Easily you people can identify the degree of the given polynomial. Let me give one more question. And 5p minus under 3. So this is the variable here. What is the degree of the variable in this one? 1 is here. So I will write degree equal to 1 because the variable having no power is always taken as 1. जिस भी variable का कोई भी डिग्री नहीं है, I will write it as only 1. There everybody. So this was the question here. And one more question I come to know that write monomial oblique binomial with given degree. उसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? अब क्वेश्चन में मान लो मैं मोनोमियल लिखना चाहता हूँ. मोनोमियल का मैं डिग्री लेता हूँ 35. इन मोनोमियल देयर शुड बी ओनली वन टर्म. क्लियर मेरी बात? मोनोमियल के अंदर हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा? 1 डिग्री ही होना चाहिए. तो मोनोमियल में लिख देता हूँ 3t और इसका डिग्री कितना लिख देता 35. अब इसमें एक ही टर्म है तो इसका मतलब ये मेरे पास मोनोमियल विद डिग्री 35 आया. अब बाइनोमियल की बात करेंगे. मान लो बाइनोमियल की मैं डिग्री लेता हूँ 1000 तो उसमें मुझे कितनी टर्म्स लेनी होंगी बेटा? 2 टर्म्स. तो मैं इसको लिख देगा 66p प्लस 9. अब ये तो बाइनोमियल हुआ मेरे पास, बट इस बाइनोमियल का डिग्री मुझे लिख देना है 1000. मीन्स द वेरिएबल शुड हैव डिग्री as given in the question and the number of the terms should be kept in the mind. If it is monomial, the number of terms should be 1. If it is binomial, so number of terms should be 2. Trinomial, then number of terms should be 3. According to that, we people can suggest the degree. The next is exercise 2.2.
Exercise 2.2, the question is find the value of polynomial. Find value of polynomial. I will take the polynomial as px is equal to, that polynomial is nothing but 5x minus 4x square plus 3 and इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है एट द वैल्यू नंबर 1 x is equal to 0, number 2 x is equal to minus 1, number 3 x is equal to 2. So in the given polynomial, my dear student, whenever we have to find the value of the polynomial, only the value of the variable, whatever given in the question, we have to keep in mind. First of all, the polynomial, you see, it is in only one variable polynomial. X is here. सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है x, और उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x का जो भी रेलेवेंट वैल्यू गिवन है वही मुझे यहाँ पे लिख देना है. सॉल्यूशन पार्ट 1 का, पुट x is equal to 0 in px. x में वैल्यू 0 पुट करने पर बनेगा p of 0 is equal to 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. So the value of the polynomial is coming to be 0 minus 0 plus 3. So I will say p of 0 is coming to be 3. P of 0 is coming to be 3. Second is there. Put x in the polynomial px. 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 power 2 plus 3. तो ये मेरे पास बनेगा minus 5 minus 4 plus 3 minus 9 plus 3 minus 6. So I will say p of minus 1 is equal to minus 6. Third is x equal to 2. So I will write p of 2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 power 2 plus 3. That is coming 10 minus 16 plus 3 minus 6 plus 3 equal to minus 3. So these are the respective values of the polynomial at a given point. Clear everybody? दिए हुए x वेरिएबल पर x इक्वल टू 0 करने पर वैल्यू हमारे पास 3 आता है, x इक्वल टू माइनस करने पर इसका वैल्यू -6 आता है, x इक्वल टू 2 करने पर वैल्यू -3 आता है. सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट चेंज की है. 7th और 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x और y का वैल्यू पुट करके उनका वैल्यू फाइंड किया था. सेम ही पार्ट यहां पर है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेम एक्सरसाइज. Here again the question number 4 is here. Find 0. The question number 7 was given by one student.
Find the zero of the polynomial in each of the following cases if px is equal to cx plus d, cx plus d, c, d are real number. Px equal to cx plus d, c not equal to 0 and CD are real number. Real numbers. अब zeros में हमें इसको equivalent to पूरा polynomial value should be equal to be 0, so I will write cx plus d should be equal to 0. So it means cx will be equal to be minus d. So variable value x will be minus d by c. X value, the variable value should come as minus d by c. अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो इन px put x equal to minus c by d in polynomial, तो हमें अपने आप ही आंसर दे जाएगा p of minus d by c is equal to c into minus d by c plus d. तो c and c कट होगा, which implies p of minus d by c is equal to minus d plus d, means p of minus d by c will be equal to be 0. This is nothing but only x value equal to minus d by c is satisfying this polynomial, which means the whole value of the polynomial is coming equal to be 0 and x value is 0 of the given polynomial. Clear everybody? So this is the question here. Now let us approach to the exercise 3.3. By using the remainder theorem, exercise 2.3, on the basis of remainder theorem. In current session, whatever the topic was removed by the CBSE, in this proof of remainder and factor theorem is totally eliminated, removed from the topic, but we people have to know how can we find out the remainder. रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए सीधा मेथड है आपके पास कि किसी भी चीज को हम डिवाइड करेंगे, whenever a polynomial px is divided with another polynomial gx such that its quotient is qx and remainder is rx. So likewise way I have to justify कि कोई भी given polynomial को डिवाइड किया जाएगा g of x से, तो इसका क्वोशंट होगा qx और यहाँ से मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा that should be r of x. Well, simple and shortcut way is here. क्लियर? अब यहाँ से मुझे दो टर्म याद करनी है. कमेंट टू मेमोरी, ये मेरे पास दो पॉइंट हैं जो मैं मोस्टली यहाँ पे वेटेज दूंगा कि आपको ये दो टर्म अगर समझ आती है. ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा? px डिवाइडेड बाई gx. ठीक है, वी आर गेटिंग रिमाइंडर आर x. दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर.
पीएक्स को डिवाइड करेंगे जीएक्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से रिमाइंडर। बट ये जो जीएक्स होगा लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप x माइनस a। क्लियर? अब यहां से फर्दर मैं एक और बात इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। जब मैं p ऑफ a फाइंड करूंगा तो यहां पे सम क्वांटिटी सम रिमेनिंग थिंग obtained। क्लियर? जब मैं डिवाइड करूंगा p ऑफ a तो यहां पे कुछ रिमेनिंग थिंग बचेगी, वो मेरे पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अब दूसरी बात में जब मेरे पास p ऑफ a जो रिमेनिंग चीज होगी वो 0 बन जाएगी। इट मींस दैट gx will be factor of px। ये दो चीजें हमें ध्यान से समझ लेनी है कि जब हम px को gx के साथ डिवाइड करेंगे तो जो भी टर्म्स हम p ऑफ a फाइंड करेंगे, p ऑफ a फाइंड करेंगे तो कुछ भी रिमेनिंग बचेगा, दैट विल बी ऑब्वियसली द रिमाइंडर। बट व्हेन एवर ऑन द सेकंड हैंड जब p ऑफ a इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर पूरा 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ शॉर्टकट में कि पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में कंप्लीटली क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, और उसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा है? 0। और इन अदर मैथमेटिकल लैंग्वेज आई कैन से दैट gx विल बी फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब ये हुआ gx जो है वो px का क्या होगा बच्चों? फैक्टर होगा। अब हम इसी तरह से अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, वो क्या कहना चाहता है। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, उसको बार बार आपको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर ही ये आपके माइंड में आएगा। क्लियर बेटा? लेट मी सी। Question number 1 is there. Find remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। x plus 1 फर्स्ट पार्ट। इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे लिखना है पॉलिनोमियल क्या गिवन है? px क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। और किससे डिवाइड करने जा रहे हैं हम? gx से, जो मैंने आपको बोला था रिमाइंडर क्यूब के अंदर, दैट इज x प्लस 1। अब इसको मैं एज ए लीनियर पॉलिनोमियल के टाइप का लिखूंगा, मतलब x माइनस माइनस 1। यहां पे मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, x प्लस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू x माइनस माइनस 1। तो ये मेरे पास किस तरह का बन गया? x माइनस a टाइप का बन गया। कैसा बना बेटा? ये x माइनस a टाइप का। अगर मेरे पास x माइनस a आ गया तो रिमाइंडर को हम क्या बोलते हैं बेटा? p ऑफ a। तो हियर a इज इक्वल टू माइनस 1। यहां पर मेरे पास a का वैल्यू कितना आ चुका है? माइनस 1। तो वैल्यू आ चुका, तो रिमाइंडर इज नथिंग बट, हम क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ a। तो a का वैल्यू कितना? -1। तो p ऑफ कर दो, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल
इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. Let me see, which implies P of -1 equal to -1 plus 3 minus 3 plus 1. So P of -1 is coming to be this and this cut, this and this cut. इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारे पास टोटली P of A का वैल्यू चला रहा है 0. All the other words I can say x plus 1 is completely dividing px. x plus 1 जो है वो px को कंप्लीटली क्या कर देता है बच्चों, डिवाइड कर देता है. डिवाइड कर देता है मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो gx जो है वो px का क्या हुआ, फैक्टर हुआ. Everybody, so this was about RD and RD the value of remainder. 2.3 में फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड भी आप कर सकते हो on the same base. फोर्थ पार्ट इसी का ही फोर्थ पार्ट भी मैं कर देता हूँ. पाई का वैल्यू देख के लोगों को हैरानी हो जाती है, परेशानी हो जाती है. उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं. इसी का ही फोर्थ पार्ट था, 1 का फोर्थ पार्ट. मतलब px वही रहेगा, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ gx इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई. अब मैं इसको फिर मॉडिफाई कर लेता हूँ x माइनस ए टाइप में. तो x माइनस ए, तो मेरे पास a का वैल्यू कितना हुआ, here a is equal to minus, so x is equal to minus 5. अब मुझे p of a फाइंड करना है, मतलब p of minus 5 is equal to minus 5 पावर 3 plus 3 pi स्क्वायर बनेगा minus 3 pi बनेगा plus 1. अब ये जो पूरा वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी. तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा इसका रिमाइंडर. अगर फिर भी आपको यहाँ पे क्वेरी होगा तो आप p का वैल्यू पाई का वैल्यू जो है 22/7 यहाँ पे पुट कर देंगे. और पुट करने के बाद आपके पास जो भी रैशनल नंबर में या होल नंबर में आंसर मिलेगा वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा. अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम डॉट सॉल्व करेंगे. चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 2, चेक एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x minus a is divided by x minus a. मैं बोलता हूं कि चेक करो, मैं आप बच्चों से जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं. बताइए कि 6 3 से डिवाइड हो जाता है तो आप क्या अनुमान लगाओगे? We will think that when I am dividing 6/3 means remainder should be 0. रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों? 0. इट मीन्स सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं px जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a. अब gx कितना बेटा इसका, इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख लिया मैंने x माइनस a. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. कैसी फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में. मतलब x माइनस a टाइप का ही है ये, प्लस नहीं है यहाँ पे. इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे x माइनस करके लिखना पड़ता. अब इफ
Px, which means P of A should be equal to be 0. इसका ये मतलब होगा बेटा, अगर x माइनस a डिवाइड करता है Px को, इसका मतलब P of A, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये a की वैल्यू मेरे पास, तो P of A is equal to a power 3 minus a into a square plus 6 into a minus a. So P of A is equal to a cube minus a cube plus 6a minus a. तो ये बना P of A is equal to ये और ये कट, कितना बचा 5a. इसका मतलब क्या हो गया है बच्चों, इसका मतलब यही हुआ कि x माइनस a से Px को डिवाइड कर देते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, और इसका रिमाइंडर कितना बच जाता है, 5a बच जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और 3 में भी पूछा है बच्चों ने, इसका भी हम सोल्यूशन आपको देंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो बिकॉज वेरी नाइसली you people give the replies, sir. I am facing problem in this and that question, clear? So it is also our duty to justify you people, okay? So question number 3 है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3, चेक कर लेंगे सर, चेकअप करेंगे। चेक 7 plus 3x is factor of 3x cube plus 7x। पहले px लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, gx। सॉल्यूशन में px is equal to 3x पावर 3 plus 7x, और gx क्या है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x plus 7। तो ये बोलते हैं इसको डिवाइड करेगा, इट मीन्स 3x plus 7 is equal to 0, क्लियर? तो 3x will be equal to -7 and will be equal to -7/3. Put in the polynomial, P of -7/3 is equal to 3 into -7/3 whole cube plus 7 into -7/3। देखते हैं क्या आता है इसका। P of -7/3 is equal to हाँ 3 into -343/27 plus -49/3। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9 -343/9 -49/3। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है, इससे मिलेगा 9 और 3 का, इससे मिलेगा 9 और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसका क्या फाइंड आउट कर लेना है, रिमाइंडर कर लेना है फाइंड। क्लियर बेटा? तो इस तरह से ये हमारा आज का जो वर्क है, 2 एक्सरसाइज का, वो हमने यहाँ से वेरीफाई करवा दिया। आज दिन तक हम इतना ही करेंगे, फिर कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।